Good morning students, welcome back to the class. Students, today we are going to have our sixth lecture on dual nature of matter and radiation. In my previous lecture, I completed dual nature of radiation, and today I am going to start dual nature of matter. I have told you when I started this chapter, I have told you that this chapter is all about the dual nature of radiation and matter. Means a radiation, in addition to the wave nature, also shows particle nature, and matter in addition with the particle nature, because usually the matter shows us the particle nature, but in this chapter we are going to learn that in addition to the particle nature, matter also shows wave nature. Okay, now let us start dual nature of matter. And who was the scientist who told us about the dual nature of matter? Because as far as dual nature of radiation is concerned, we know that now that according to the Planck's quantum theory, light was considered to be a particle, that is a photon. And based on that Planck's quantum theory, Einstein gave us the photoelectric equation, on the basis of which we can explain the photoelectric effect, and photoelectric effect confirms the particle nature of the light. Okay, similarly in 1925 there was a French physicist named de Broglie. In some books, or you can pronounce it as de Broglie. De Broglie, who was a student at that time and was pursuing his PhD, he put forward the bold hypothesis, because all of you know that when we are doing our PhD, we have to submit a thesis. Okay, so in his thesis, he wrote a very bold statement. He said that material particles in motion should display the wave particles like radiation. In addition with the wave nature exhibits particle nature. So he said that material particles means the matter in motion means when they are moving, should display the wave like particles. Okay, this bold statement he wrote in his thesis as his hypothesis. But this statement was all theoretical, and it had no experimental proof by that time. So when he submitted his thesis, his guides, they were not very sure about what this boy or what that scientist of that time means, or the physicist of that time, that is de Broglie, has written. So they called the physicist of that century, Einstein, to look into the matter, and they said him that sir, please confirm whether this boy who has written this statement is right or wrong. When Einstein read that statement, he said, no doubt that this statement, whatever the statement this boy is given, that the material particles in motion display the wave-like characteristics, may at this point of time there is no experimental proof of this statement, but I think there is something. This statement has a weight. And moreover, de Broglie made this statement on the basis of two considerations. And what were those considerations? किसके आधार पर, किसके basis पर उसने ये statement बनाई थी? What were the considerations that led him to think about this hypothesis? वो conditions क्या थी? He said that in this universe, every universal law is governed by only two physical quantities, and those physical quantities are energy and mass. He said according to the Einstein's mass energy equivalence, E is equal to mc square, and according to this equation, energy, whatever energy is there, is converted into mass, and whatever mass is there is converted into energy. This is known as Einstein's mass energy equivalence. It means कि if from this he concluded that if energy means radiation can show the dual nature, so
since energy is there which is getting transferred into mass in this universe, so why not mass show the dual nature? Means in addition to the particle nature, why can't the mass show the wave-like properties? So this led him to think about this. Now second consideration which led him to think this, and second the second support, you can say, in his statement, what the statement that he has made, the second consideration in his support he gave, he said nature loves symmetry, because energy and mass are related to each other by the Einstein's mass energy equivalence. So if nature loves symmetry, it means there must be a mutual symmetry between energy and mass. If energy means radiation, light energy can show the dual nature, certainly the mass is also going, the mass can also exhibit the dual nature. On the basis of these two considerations, on the basis of these two evidences, theoretical support, this is all theoretical support, these statements are just the theoretical explanation of his hypothesis. There was no experimental proof till that time, on the basis of which he made a bold statement in 1924 that the material particles in motion display wave-like characteristics. And to your knowledge, children, I must tell you that in 1927 and 28, Davison and Germer and G.P. Thomson, they gave the experimental proof of this statement, for which de Broglie was awarded the Nobel Prize for this statement earlier, and after that in 27 and 28, Davison, Germer and G.P. Thomson, they were also awarded Nobel Prize for confirming the wave nature of electrons, wave nature of electrons using the वेव लाइक नेचर. मतलब उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कंफर्म किया विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. दे यूज द de Broglie's hypothesis and the results, means the theoretical result of de Broglie hypothesis and the experimental proof of the experimental values which they calculated using the wave-like effects of the radiations emitted by the electrons. They were very much in synchronization with each other, for which all the scientists were awarded Nobel Prize. Okay, now let us start. This was all the history beyond this de Broglie's hypothesis. So if the question comes in exams like what is de Broglie's hypothesis, the statement is de Broglie's hypothesis states that the material particles in motion display wave-like nature. Okay, and de Broglie made this hypothesis on the basis of two considerations. And what were those considerations? First is the mass in Einstein's mass energy equivalence is equal to mc square, and second statement that he made in his support, that was nature loves symmetry. Okay, now let us come to the de Broglie's wave equation. De Broglie's derived a wave equation which gives us the relation between the lambda and the momentum of the particle. So let us find out what the relation is. De Broglie started the equation, he derived the equation based on the already established concept of photoelectric effect. He said that now we know that the photon, which shows wave-like as well as the particle-like characteristics. So he said that now we are starting the de Broglie's derivation of de Broglie's equation by considering the photon to display dual character. Okay, we are starting with the photon and then we will conclude, generalize it, then we will apply it to the material particles. If we consider a photon to be an electromagnetic wave, or you can say radiation of frequency nu, then according to the Planck's quantum theory,
द एनर्जी, क्या एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक फोटोन के साथ एसोसिएटेड होती है? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन is given by E is equal to h nu. Okay, this was the relation of the frequency and energy when we assume the photon to be a radiation. Okay, now he said that we all know by this time that photon can exhibit wave nature as well as particle nature. Now we consider, if we consider photon to be a particle of mass m, then the energy related to it according to the mass energy equivalence given by Einstein is E is equal to mc square. ठीक है, since both of the equations 1 and equation 2 they are representing energy related with the photon, so mc square is equal to h nu. ठीक है, यहां से ये आ गया. It employs, मैं यहां पे लिखूंगी h nu को लिखूंगी hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि और यहां पे लिखूंगी mc स्क्वेयर. अब यहां से देखो आप, एक c और एक c कैंसिल हो जाएगा. यहां पे आया h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc. इट एम्प्लॉयज, मुझे लैम्डा का रिलेशन चाहिए. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, और यू कैन राइट इट एज h अपॉन p, वेयर p स्टैंड्स फॉर द मोमेंटम ऑफ द फोटोन. इट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. So this equation lambda is equal to h upon p, this equation is known as de Broglie's wave equation. Now look, this is the equation where lambda, the characteristic of a wave, is related. This is the characteristic of a, ये किसकी characteristic होती है? Wave की. Characteristic of a wave is associated with momentum, and momentum is the characteristic of a particle. तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, जो कि वेव कैरेक्टरिस्टिक को पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ कनेक्ट करती है. सो इस सिंगल इक्वेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डुअल नेचर ऑफ किसका? रेडिएशन. तो अब यहाँ पर डी ब्रॉगली ने कहा कि सिंस नेचर लव सिमेट्री, तो इसका मतलब है कि यही सेम इक्वेशन जो है हम मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर द मटेरियल पार्टिकल्स ऑल्सो. उसने कहा कि सिंस नेचर लव्स सिमेट्री, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू. अगर ये रेडिएशन के लिए है तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर मटीरियल पार्टिकल्स. ठीक है, वहां पर द इक्वेशन बिकम्स, क्या इक्वेशन बन जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द मटीरियल, क्योंकि यहां पर c लिया था, यहां पर वेलोसिटी ऑफ द मटीरियल पार्टिकल. सो देखो आप, अब वो मटीरियल पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है इक्वल टू mv है,
उसके पास मोमेंटम है, लेकिन साथ ही साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली उसके पास वेवलेंथ भी है। और वेवलेंथ किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की। इसका मतलब है अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि मटेरियल पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ पार्टिकल, वर्ड ही पार्टिकल लगा है उसके साथ, तो दे शो पार्टिकल नेचर। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इन एडिशन टू दैट पार्टिकल नेचर दे ऑल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो क्या कंडीशंस होती हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ this he made following observations। ठीक है, उसने क्या observations की थी about the material particles? He said wavelength lambda associated with मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? मास के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो? मास के। इसका मतलब है इफ फॉर ए गिवन वेलोसिटी को हम क्या रखें, अगर कांस्टेंट रखें, तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी उस केस में मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड, दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन्स ग्रेटर मास means smaller wavelength। ठीक है, जैसे जैसे मास बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल हैवी होता जाएगा, उस केस में आप देखोगे कि वेवलेंथ बहुत छोटी होती जाएगी, इतनी छोटी होती जाएगी कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी और हमें लगेगा कि उसके पास वेव नेचर नहीं है। बट एक्चुअली में वेव नेचर उसको पोजेस करता है। वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सेकेंड पॉइंट उसने कंक्लूड किया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मींस कि फॉर ए गिवन मास, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट रखें हम, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जाती है। मींस फास्टर द पार्टिकल, जितना पार्टिकल फास्ट होता जाएगा, स्मॉलर द वेवलेंथ। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ v is equal to 0 then lambda is equal to undefined infinity। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि wave nature is shown by particles only when they are moving। when they are, अगर रेस्ट पे होंगे तो वेव नेचर वो एग्जिबिट नहीं करेंगे। दीज आर द सर्टन कंडीशंस। नाउ फोर्थ, इट इज वेव नेचर इज independent of the charge of the particles। means कि पार्टिकल के पास चार्ज है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। the de Broglie's waves are emitted out by charged as well as uncharged particles। It depends upon their mass and it depends upon their velocity। It does not depend upon the charge। इससे एक पॉइंट उसने और कहा, उसने कहा de Broglie's waves are different from EM waves and mechanical waves। So he named them as
मैटर वेव्स। क्या नाम रखा उसने इसका? मैटर वेव्स। देखो डी ब्रॉगलीज की वेव्स जो हैं वो ईएम वेव्स और मैकेनिकल वेव्स से कैसे डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। बट जो डी ब्रॉगलीज वेव्स है जिसका नाम उसने बाद में मैटर वेव्स रखा, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑल्सो। सो द डिफरेंस लाइज एंड they are not at the same time they are not the mechanical waves, because de Broglie's waves can travel through the vacuum, but mechanical waves they need some material medium for their propagation. So these waves were named as matter waves. Okay, now we see, now we can say that matter waves are significant and measurable for subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। जब हम उनकी बात करते हैं तो जो वेव्स उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो वो वेव्स एमिट करते हैं, मैटर वेव्स, डी ब्रॉगलीज वेव्स, वो मेजर भी की जा सकती हैं और उनकी वेवलेंथ भी सिग्निफिकेंट होती है। एज फार एज डेली रूटीन की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो मैटर वेव्स are not visible in daily life। क्यों? देखो अभी हम इसको प्रूव करके बताते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। सपोज हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, हम ले लेते हैं इफ मास ऑफ अ बॉडी मैंने ले लिया 100 kg, ठीक है, और वेलोसिटी ले ली मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी है डेली लाइफ में जो कि जिसको हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मींस द बॉडीज हैविंग लार्ज मास, ठीक है, तो बड़ी बॉडीज। तो उसका मास मैंने ले लिया 100 kg और उसकी वेलोसिटी मैंने ले ली है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो लेट अस अप्लाई दीज वैल्यूज टू द वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू, आप सबको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, मास आ गया 100 और वेलोसिटी आ गई 10। क्या वैल्यू बन गई? 6.6 इंटू 10⁻34, 1 2 3, नीचे ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या वेवलेंथ आई? 6.6 इंटू 10⁻37 मीटर्स। बताओ ये वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि ये इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम सब लोग, जितने भी लोग जो मूव कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो मूव कर रही हैं हैविंग लार्जर मास, दे आर शोइंग वेव नेचर, बट दैट वेव नेचर इज नॉट विजिबल। एक्चुअली जो डी ब्रॉगलीज ने हाइपोथेसिस दी थी, दैट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी बॉडी वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और इट इज मैक्रोस्कोपिक। हर कोई वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है। हम जब चल रहे हैं, गाड़ियां जब चल रही हैं, दे आर एग्जिबिटिंग वेव नेचर, बट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दीज मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग लार्जर मास, वो क्या है? बहुत कम है। वो इतनी कम है, आप खुद सोचिए कि 100 kg मैंने, मतलब 100 kg की बॉडी ली है। हम लोग नॉर्मली ऑन एन एवरेज 70-80 एक ह्यूमन बीइंग का मास अगर लेकर चले, तो अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी चल रहा है, तो जो वेव वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻37 मीटर। ये बहुत स्मॉल है, इट इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। वेवलेंथ इज very small and is not detectable or observable, so we can say that macroscopic bodies do not show significant and measurable wave nature. Okay, but in case of subatomic particles, for example
proton, electron, neutron, they have very small mass, and when they move with the high velocity, they produce waves which can be detected as well as measured. Now let's come to the few numericals. ठीक है, हम numericals करेंगे इसके ऊपर. तो आप ये इसके numericals आते भी हैं एग्जाम में, प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा. What is de Broglie's wavelength of a 3 kg object moving with a speed of 2 meter per second? Okay, one thing I have left. रुको. एक चीज मुझे करानी है न्यूमेरिकल्स करने से पहले, and that is wavelength associated with an electron. Okay? क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं. एक हमने कर लिया और एक हमने करना है. नाउ लेट अस कंसीडर, मैं बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मैंने अभी बोला कि वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है उसके साथ. तो लेट अस कैलकुलेट कि कितनी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड होगी, फिर उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. लेट अस कंसीडर an electron of mass m and charge e. ठीक है, let it acquires a velocity v when accelerated from rest to a potential difference v in an electric field. क्या मतलब हुआ इन लाइंस का कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज e है, उसको हमने किसमें प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में. पहले वो इलेक्ट्रॉन जो था वो स्टेशनरी था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाई, इट गेट्स अट्रैक्टेड और एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ कितना, v वोल्ट. ठीक है, तो जब वो v वोल्ट के साथ पोटेंशियल के साथ वहां पर एक्सेलरेट होता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो एक्वायर करता है आफ्टर गेटिंग एक्सेलरेटेड, दैट इज v. सो इसका मतलब हुआ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड by the electron is due to the work done on it by the electric field. देखो, जब आपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लगाती है बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल. वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है विद वेलोसिटी v. तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल फील्ड हैविंग द पोटेंशियल v इक्वल टू e इंटू v, मतलब उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल. तो यहाँ पर वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² is equal to E into V, because potential energy, or you can say equal to work done, is equal to किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, जो उसमें जितना पोटेंशियल उसका एक्सेलरेट हुआ है. नाउ लेट अस सी, यहां से आया आपके पास mv² is equal to EV टू EV. ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया इट एम्प्लॉयज v² किसके बराबर आया, 2EV अपॉन m, और यू कैन से v इज इक्वल टू 2EV अपॉन m. ये मेरा मास का वेलोसिटी का रिलेशन मैंने पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास में के टर्म्स में निकाल लिया. नाउ डी ब्रॉगली की वेवलेंथ सबको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी.
ठीक है, मास यहाँ आ गया, वेलोसिटी का रिलेशन मैं यहाँ लगाऊंगी, ये अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये एक कैंसिल होगा, अंदर आ जाएगा 2mEv। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया लैम्डा का फॉर किसके लिए, लैम्डा किसकी है, ये वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज मुझे पता है। अगर मैं इनकी सबकी वैल्यूज लगाती हूँ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज मुझे नहीं पता है, जब मैं ये सारे कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको डिफरेंट वोल्टेजेस पे पूछे जाएंगे, तो आपने उस वोल्टेज की वैल्यू इसमें V की जगह पुट करनी है। बाकी 12.27 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट रहेगा और लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको बताते जाऊंगी। नाउ लेट्स कम टू फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल्स, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। दो ही फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बताए हैं, वही दो फॉर्मूले मैं यूज करूंगी। कौन से दो फॉर्मूले हमने किए, एक हमने फॉर्मूला किया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और दूसरा मैंने वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन किया 12.27 और अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अभी आपको कराया कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है दैट इज एच अपॉन, या इलेक्ट्रॉन या किसी इसी के साथ भी, ये तो इलेक्ट्रॉन की तो ये पर्टिकुलरली होगी, ये एच अपॉन पी है। पी का जो रिलेशन होता है वो 2me, ये कैसे आएगा ये बताती हूँ मैं आपको। ये तीन फॉर्मूले ही मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमने। Excuse me. First question is what is de Broglie's wavelength of a 3 kg object moving with a speed of 2 meter per second। ठीक है, आपकी मास दिया हुआ है 3 kg, स्पीड है now we have to find out the de Broglie wavelength. So you know wavelength is equal to h upon mass into velocity। आप पुट करेंगे, मास आ गया 3, वेलोसिटी आ गई 2। ठीक है, ये आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 6, ये आ गया 1.1। द आंसर इज 1.1 इंटू 10⁻⁻34 meters। Now let's go to the second question. What is de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? तो हम इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन, क्योंकि वोल्टेज दी हुई है इसलिए मैंने ये लगाया एंगस्ट्रॉम्स, तो 12.27 अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मतलब कितना होता है 10, और मेरा आंसर आया 1.2 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी है मुझे। काइनेटिक एनर्जी मीन्स 1/2 mv² इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप होता है। अगर आपने नहीं किया है 11th में तो अब देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन, मैंने लिख दिया m। क्यों, एक m मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लगाया था, उसकी जगह ये लिखा 1/2, ये क्या आया मेरा p² अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या बनता है, यहां से निकल गया p² इज इक्वल टू 2m ke।
यानी काइनेटिक एनर्जी, उसकी जगह मैं कैपिटल ई लिख रही हूँ। तो P होता है √2mE। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। आप ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, यहां से आपका P इज इक्वल टू 2me निकलेगा। तो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू H/P के बराबर होता है, तो मैं H/2me लिखूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और मास दिया हुआ है। तो अब मैं वही वैल्यूज लगाऊंगी, 6.6 इंटू 10⁻34 √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, जूल्स में। तो ये आ गया मेरा 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सभी वैल्यूज जो हैं ये मैंने कैलकुलेट की हुई हैं, 1 2 3, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स को मिला के मेरे पास 12.27 बनता है, अपॉन क्या आता है √100। तो आंसर बच्चों अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये यही होगा। वैसे भी यहाँ पर √v है, ठीक है, v में मैंने 100 लगाया, यहाँ पर भी मेरा v जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जगह तो मैंने 1.6 इंटू 10⁻19 लगा दिया था, पीछे v ही बचा था। तो ये सेम आंसर आपका निकलेगा। अब आप खुद सोचिएगा कैसे किया मैंने, एक बार थोड़ा सा आप खुद भी ट्राई करिए। नाउ कम्स ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। ठीक है, which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it, less kinetic energy? Justify your answer. These questions are very frequently asked in CBSE exams. मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए हैं ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। देखो, जो चीज इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका क्या होता है, आपको जो चीज कांस्टेंट दी हुई है, सेम दी हुई है, क्या सेम दिया हुआ, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। पढ़ो यहाँ पर क्या है, सेम पोटेंशियल। और फिर जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो क्या कहा है, वेवलेंथ। तो हमने रिलेशन निकालना है वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ जो चीज कांस्टेंट दे रखी है, और वो है पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा का जो रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू H/, अभी मैं पीछे करके आई हूँ, E इंटू V। इस इक्वेशन में देखो H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं। E कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब अब मैं E की जगह यहाँ पे Q लिख सकती हूँ, चार्ज लिख सकती हूँ। ठीक है, तो Q कांस्टेंट नहीं है क्योंकि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात हो रही है। तो H2 और M जो है वो कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स कि इट एम्प्लॉयज एंड सेम पोटेंशियल भी क्या है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको हम क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में ले आएंगे। देखो फॉर हैंड यहाँ पर आप लिखो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, देखो किस किस के, मास और चार्ज। क्यों? क्योंकि आपको चार्ज, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं। जो चीज कांस्टेंट है वो सिर्फ पोटेंशियल है और 2 है इसमें। सॉरी, M और Q यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर मैंने, मुझे लग रहा है पहले बोल दिया है, तो M और Q कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका मास और चार्ज अलग अलग है। इन दिस क्वेश्चन फॉर ए गिवन कंडीशन, यहाँ क्या लिखूंगी मैं, फॉर ए गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब आप देखो कि समझ आ गया ना आपको क्या किया मैंने। जो चीज निकालनी है और जो चीज कांस्टेंट दी है उसमें आप वो रिलेशन लिखोगे। फिर लैम्डा को हमने जो कांस्टेंट है उनको मिला के प्रोपोर्शनैलिटी बना देनी है। H है, 2 है और V कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल बन गया। तो लैम्डा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया √m इंटू Q। अब क्या पूछा है हमें, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। हम पहले प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे। प्रोटॉन का जो होगा दैट विल बी √m/p/q/p। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन आ गया अल्फा पार्टिकल का, इट इज 1/m⁴q⁴। नाउ वी विल डिवाइड, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा λp/λα। क्योंकि इसका भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसकी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। जब डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर आ जाएगा m/q⁴ और यहाँ पे आ गया m/p/q/p। अब वैल्यूज लगाएंगे। अल्फा पार्टिकल का मास अगर 4m है और चार्ज कितना है 2,
सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और उसका जो मास है वो 4 के बराबर आता है, और चार्ज उसके पास 2 प्रोटॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m इंटू ई, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया √a, दैट इज 2√2। तो इसकी जो वेवलेंथ है किसकी, प्रोटॉन की, दैट इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स लैम्डा अल्फा। तो इट एम्प्लॉयज कि जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से ज्यादा है। नाउ कम्स विच हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेम पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकालो। तो आपके पास आया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, पता है आपको, इट इज E इंटू V। सो इट एम्प्लॉयज कि जो आपका पोटेंशियल अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप Q लिख दो ना इसको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सिंस चार्ज ऑफ alpha particle is more than the charge of proton, therefore kinetic energy of alpha particle will be more than the kinetic energy of proton। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलो एक और करते हैं इसका। अब देखो क्या है, an electron, alpha particle and a proton have same kinetic energy. Which of these particles has shortest de Broglie wavelength? ठीक है, अब किसका रिलेशन निकालना है, डी ब्रॉगली तो निकालनी है वेवलेंथ, लेकिन कांस्टेंट क्या रखी है, काइनेटिक एनर्जी। अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग पोटेंशियल हमने क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √, सबको पता है 2me, अभी मैंने पीछे किया है। तो अगर h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और E कांस्टेंट है, तो लैम्डा हमारे किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, मास के। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करोगे आप, बताओ क्या कंक्लूड करोगे, कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है, इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा, इट विल बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आई होप कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू द, वॉच द वीडियो, गो थ्रू द शीट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ।